Good evening, everyone. Welcome to the Concept Booster series. And without wasting any more time, let us quickly get into the agenda. Now, what I have for you today, guys, is we are going to deal with 7 most important rules of verb usage. I'm sure जो लोग मुझे follow कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, you would have understood that with this Concept Booster series, we are trying to make sure that the concepts related to all these 3 sections, so whether it is VARC, whether it is quant or whether it is reasoning, we are just picking up the topics and we are making it sure that कि ये जो concepts है वो आपको clear है और ये जो clarity of concepts है वो आपको help कर रही होगी आपकी preparation के लिए, that is IPMAT 2026. So let us not waste any more time. Let us quickly get started with verbs. Now, before I tell you what are the rules governing the correct usage of verbs, understand one thing. You first have to know what exactly is a verb. So do some homework. Watch videos. For example, we have a series of videos where we have discussed these parts of speech. So you have got noun, you have got pronoun, you have verb, adjectives and so on. So please refine your understanding of basically what verbs are and then watch this video because that will help you to consolidate कि ये जो rules हम discuss करने वाले हैं उसको हमें किस तरीके से implement करना है questions में. गाइस, एक और चीज जो आपको क्लियर रखनी है, दैट इज व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रामर क्वेश्चंस में द फेमिलियरिटी ऑफ द रूल इज क्रूशियल बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि हम कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. एंड जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो वो आपको हेल्प करता है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने थियोरेटिकल सेंस में पढ़े हुए हैं आप उसको क्वेश्चंस में किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो. So make it sure that you do some homework with respect to what verbs are and how these verbs are supposed to be used. That is being discussed in today's video. So let us get started. Yeah, so you have the first very important rule. Basically, all these 7 rules I have chosen because these are the most prominent ones and these are frequently asked in the competitive examinations across the board. So let us get started. It says सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट विथ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स. तो जब आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को इलैबोरेट तरीके से डिस्कस किया था. सो इफ यू आर समबडी हु हैज नॉट वॉच दैट वीडियो, गो टू द प्लेलिस्ट. आई एम श्योर यू विल हैव सम stuff that you can refer to so that you clear your understanding of subject verb agreement. Now what exactly this rule is? It says the verb must agree with the actual subject. आपका जो verb है वो एक actual subject के साथ में agree करना चाहिए, not with the words that come between the subject and the verb. Prepositional phrases, relative clauses and modifiers. ये थोड़े से heavy terms है guys, but I believe कि आप बहुत ज़्यादा theoretical knowledge पे balance मत करो. Just make it sure कि जो examples मैं quote कर रही हूँ आप उन examples को समझो and through those examples you consolidate your understanding कि verbs को हम किस तरीके से use करते हैं. So let's look at the first example. It says the list of items is on the table. नाउ इस सेंटेंस में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं द सब्जेक्ट इज लिस्ट एंड नॉट आइटम्स. फाइन. एंड क्योंकि लिस्ट सिंगुलर है हमने यहाँ पे क्या यूज किया, वी हैव यूज अ सिंगुलर वर्ब विच इज कॉल्ड एज. डू नॉट बी कंफ्यूज कि यहाँ पे आइटम सब्जेक्ट है, हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. So list becomes the subject and because list is singular you have a singular verb which is. So this makes complete sense. On the other hand, look at this. It says the bouquet of flowers. Now this says of flowers. So there are many students who say कि flowers हमारा subject है, but that is not true, guys. ठीक है? The subject is bouquet here, and because it is singular, we have used a singular verb which is was. ठीक है? So when you have the subject and the additional words, तो आपको additional words पे focus नहीं करना होता. आपका जो verb है that still agrees with the subject of the sentence. Now if you are somebody who does not know how to understand the subject, make sure that आप वो subject verb agreement वाला video watch कर रहे हैं so that you know कि हम subjects को कैसे identify करते हैं. because जब तक आपको subject identify करना नहीं आएगा तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि subject verb agreement के जो rules हैं या जो verb के rules हैं वो किस तरीके से यूज हो रहे होते हैं अक्रॉस द क्वेश्चंस.
सो इन दीज टू एग्जाम्पल्स आई होप इट इज क्लियर कि यहाँ पे लिस्ट आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पे बुके आपका सब्जेक्ट है। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको आपको ओवरलुक करना होता है, तो आपका जो वर्ब है दैट अग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट, सो दिस इज द ट्रू मैट। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कॉमन आईपी मैट ट्रैप, लुक एट दिस, इट सेज द टीचर अलोंग विथ हर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है गाइस, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज स्टिल टीचर, and because teacher is singular we will have to make use of singular, so you say the teacher along with her students is attending the सेमिनार। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा कि टीचर इज द सब्जेक्ट एंड नॉट द स्टूडेंट्स, देन ऑफ कोर्स यू वुड बी कंफ्यूज। सो रिमेंबर दिस थिंग कि जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस में, आपका जो वर्ब है वो अग्री कर रहा होता है मेन सब्जेक्ट के साथ। सो मे बी यू विल हैव टू ब्रश अप योर फंडामेंटल्स अ लिटिल, ठीक है, एंड दैट विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड कि क्या हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आता है, and if we can identify the subject then the execution of this rule becomes easier. Let's move on to the second one. It says singular versus plural with indefinite pronouns. तो हम singular और plural को कैसे differentiate करते हैं, that also makes a point कि हम grammar के questions को कैसे handle करेंगे. So it says certain indefinite pronouns are always singular, some are always plural. कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, एंड फ्यू कैन बी बोथ डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। एंड कुछ ऐसे भी होते हैं something that can be singular also and something that can be plural also. Now let's look at the example. It says each of the players is ready for the match. Now if you are somebody who is thinking कि यहाँ पे players है तो आर आना चाहिए, well that is not the point, क्योंकि हमने इस sentence को precede किया है by the word that is each, और क्योंकि each को हम singular treat करते हैं, so you say each of the players is ready for the match. So this is the correct sentence. Now few of the students are late today, so we have got few here. So few तो plural होता है, तो हमने यहाँ पे plural use किया which is are, it is plural. Some of the money is missing, आपने some को जरूर use किया है but यहाँ पे money is singular, so you say money is missing. And the next example, आपने यहाँ पे भी some को use किया है but here you have cookies and cookies is plural, so you will have to make use of are. Basically ये जो questions या जो rules आप study कर रहे हो guys, this is more in terms of your fundamentals and basics. तो आपको subject की understanding होनी चाहिए, आपको verb की understanding होनी चाहिए, हमने उस पे videos भी बनाए हैं, तो you can watch those videos to clarify your understanding. Then you can come back to these sessions जहाँ पे हम rules discuss कर रहे हैं with respect to the correct verb usage. Right? So each is again singular, few is plural, some can be singular or plural. So depending, because here you have money, so you have used here singular, here you have cookies, so you have used are, countable and plural. Now there is a common trap that is there, which is neither of the answers are correct. Neither means none of these, so you have to say neither of the answers is correct instead of are. बेसिकली अगर आपने फंडामेंटल्स पे वर्क करना शुरू कर दिया है तो ये जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके साथ रेजोनेट कर रहा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपने बेसिक्स पे काम नहीं किया है तो आई वुड एडवाइस कि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज है उसमें से आप पहले वीडियोस को फिगर आउट करिए, अपने अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा रिफाइन करिए एंड देन कम बैक टू दीज वीडियोस, क्योंकि रूल्स को हम तब अप्लाई कर पाएंगे जब हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि वर्ब क्या होता है, नाउन्स क्या होता है, प्रोनाउंस क्या होता है, एंड सो यू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट. फाइन, सो रिमेंबर दिस वन ऑल्सो. जहाँ पे भी आपको समझने में थोड़ी सी इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पे आप पॉज कर सकते हो एंड यू कैन रीविजिट द वीडियो एंड दैट विल मेक यू क्लियर कि अगर कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा सा ट्रबलिंग है, यू कैन इलैबोरेट ऑन दैट एंड यू कैन क्लियर योर मिसअंडरस्टैंडिंग्स. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, tense consistency in complex sentences. Tense is an important part of grammar and almost every exam does test you on tense वाला question. So let us understand कि tense को हमें कैसे use करना है. It says maintain logical and consistent tenses within a sentence or passage, especially when dealing with cause and effect or reported speech. इसका example देखिए. It says she said she was going to the market. So this is past, this is also past.
so the sentence is consistent. On the other hand, when you say she said she is going to the market, यहाँ पे past है plus present है, एक ही sentence में दो tenses नहीं हो सकते guys. So you will have to correct and say she said she was going to the market. अगर आप यहाँ पे is use करेंगे that will be incorrect, right? एक चीज याद रखो, कोई भी sentence अगर है, एक simple sentence अगर है, तो या तो वो प्रेजेंट टेंस में होगा, या तो वो पास्ट टेंस में होगा, या तो वो फ्यूचर टेंस में होगा. एक ही सेंटेंसेस में या एक ही क्लॉज में दो अलग अलग टेंसेस को आप यूज नहीं कर सकते. नाउ कॉज एंड इफेक्ट, देयर आर सम एग्जांपल्स. आई एम श्योर कि मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जहां पे हमने कंडीशनल्स को डिस्कस किया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे कंडीशनल्स वाला एक सेशन होगा, उसको थोड़ा सा रिफाइन तरीके से वॉच करिएगा. एंड आई एम श्योर ये जो अंडरस्टैंडिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपको हेल्प करेगी कि आप अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को और रिफाइन कर सके एंड यू अंडरस्टैंड इट बेटर. तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस यूज किया, और यहाँ पे हमने, क्योंकि अलग अलग क्लॉजेस है वहां पे, तो हमने यहाँ पे फ्यूचर यूज किया. नाउ इफ ही वर्कड हार्ड, नाउ दिस इज पास्ट टेंस, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ही वुड सक्सीड. क्योंकि अगर प्रेजेंट होता तो हम विल यूज कर रहे होते, ये पास्ट है तो हम वुड यूज कर रहे हैं. एंड इट सेज इफ ही हैड वर्कड हार्ड, हैड वर्कड इज पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ही वुड हैव सक्सीडेड. ठीक है. तो डिपेंडिंग कि आपका सेंटेंस कैसा है, कौन सा कंडीशनल है, वहां पे ये तीनों एग्जाम्पल्स को मैंने इलैबोरेट तरीके से कंडीशनल वाले वीडियो में डिस्कस किया है. तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा एंड देन कम बैक टू दिस वन. फाइन. कॉमन ट्रैप, आईपी मैट ऑफन मिक्सेस टाइम रेफरेंसेस, वो टाइम रेफरेंसेस को मिक्स कर देता है. फॉर एग्जाम्पल यू से बाय द टाइम द मैनेजर अराइव द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. तो बाय द टाइम मैनेजर अराइव्ड, दिस इज सिंपली पास्ट टेंस, और उसके साथ में आपने यूज किया है पास्ट परफेक्ट. तो जब आप दो एक्शंस की बात कर रहे होते हो और दोनों एक्शंस पास्ट में हो रहे हैं, तो जो पहले हो रहा है दैट टेक्स सिंपल पास्ट एंड द नेक्स्ट वन टेक्स पास्ट परफेक्ट. तो ये पहले हो रहा था एंड देन यू से द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो यहाँ पे आपने पास्ट परफेक्ट को यूज किया है एंड दैट इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस. गाइस, ग्रामर के क्वेश्चंस में आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स की जितनी क्लैरिटी होगी आपके पास कि आप रूल्स को समझते हैं, आप उसके इंटरप्रिटेशन को समझते हैं, आपने उसके रूल्स को फिगर आउट किया हुआ है, आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हुआ है, दैट विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको कैसे टैकल करना है. तो ग्रामर क्वेश्चंस के लिए थियोरी भी इंपॉर्टेंट है, और थियोरी से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं अपने प्रिपरेशन मॉड्यूल में, उसमें आप प्रैक्टिस करना भी सीखो. हम क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे आने वाले सेशंस में, बट अभी हमारा फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे है, सो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. नेक्स्ट we talk about use of modals and main verbs. Modals like can, could, may, might, should, must, would are always followed by the base form of your verb. Base form of your verb का मतलब होता है जो basic verb होता है उसका first format. So no s, ed or ing. For example, she can dance beautifully. तो ये जो डांस है दिस इज द बेयर फॉर्म ऑफ योर वर्ब और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ योर वर्ब. और ये जो मॉडल्स होते हैं जैसे कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, इनके साथ में हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज कर रहे होते हैं. तो ही शुड हैव कंप्लीटेड द टास्क, शुड के साथ भी हैव आएगा, हैव कंप्लीटेड the task by now. So this is how you construct it. Common traps, she must completes her homework. Now again this is problematic because completes is the present tense here. तो हमें base form use करना है verb का. So you must say she must complete. तो instead of having completes here, you must say she must complete her homework before dinner. जस्ट रिमेंबर मॉडल्स जो वर्ब हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, इनके साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हैं. नाउ एडवांस्ड यूसेज जब हम पास्ट मॉडल्स की बात करते हैं, ही शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम. शुड के साथ में आपने हैव स्टडीड को यूज किया, हालांकि है तो ये भी प्रेजेंट टेंस. नाउ दे कुड हैव वन, सो हैव वन इज ऑल्सो इन दैट सेंस. दे कुड हैव वन इफ दे हैड प्रिपेयर्ड वेल. नाउ दीज आर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स.
कॉम्प्लेक्स पे आप तब जाइएगा, ऑल्दो मैंने उसका एग्जाम्पल जरूर कोट किया है, जब आपके बेसिक्स क्लियर रहे, तो थोड़े से क्वेश्चंस या थोड़े से कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ब्स को रिवाइज करिए, उनको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करिए, एंड आई थिंक ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, दैट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, पैरेललिज्म विथ वर्ब्स। पैरेललिज्म को भी हमने डिस्कस किया हुआ है अपने अदर वीडियोस में, उसको जरूर देखिए एंड लुक एट दिस वन। व्हेन लिस्टिंग एक्शंस ऑफ आइडियाज मेंटेन द सेम वर्ब फॉर्म फॉर बैलेंस एंड क्लैरिटी। पैरेललिज्म को हमने इलैबोरेट तरीके से डिस्कस किया हुआ है गाइस, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू रिलेट कि हम कौन सा रूल डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट विल इनेबल टू यू टू शार्पन योर नॉलेज। नाउ इट सेज ही लाइक्स रीडिंग, राइटिंग एंड जॉगिंग। So if you look at the verb forms here, ये भी ing फॉर्म में, ये भी ing फॉर्म में, this is also ing. Incorrect version would be, आपने बोला he likes reading, to write and jogging. So reading and jogging तो same verb form में है, but this is problematic, so this is incorrect. आपको याद रखना है, पैरेललिज्म का रूल होता है कि आपके जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होना चाहिए। तो अगर आपने ing यूज किया है तो आप थ्रू आउट ing यूज करिए, अगर आपने ed यूज किया है तो आप थ्रू आउट ed यूज करिए, अगर आपने जिरंड यूज या इन्फिनेटिव यूज किया है तो आप थ्रू आउट उसको यूज करिए। यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जब आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ दीज लिटिल रूल्स ऑफ ग्रामर यूसेज। नाउ IP मैट ट्रैप, it says the company aims to increase revenue. So you say increase revenue, expand operations and improving customer service. तो आप अगर verbs को देखोगे यहाँ पे, this is the first form, this is also the first form, but यहाँ पे आपने ing use किया है, so this is incorrect. A better way of writing this sentence would be the company aims to increase revenue, expand operations and improve customer service. So this is what makes my sentence parallel. तो मैंने यहाँ पे to use किया, first form of your verb, first form of your verb and first form of your verb. So if you compare these two examples, one is parallel in structure, one is not parallel in structure, so you have to go for a option that is parallel. आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा गाइस। अभी तो हमारा फोकस सिर्फ इस चीज पर है कि आपको रूल समझ में आने चाहिए कि वर्ब्स को हम सही तरीके से यूज कैसे करते हैं। Then we move on to the sixth one, verbs with collective nouns. Collective nouns के साथ में हम verbs को कैसे यूज करते हैं? Collective nouns like team, committee, jury, class, family can take singular or plural verbs depending on whether group acts as one or is an individuals. तो जब हम collective nouns की बात करते हैं, collective nouns like जहाँ पे हम ग्रुप को रेफर कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें सिंगुलर यूज करना है या हमें प्लूरल यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन कि हमारा कॉन्टेक्स्ट कैसा है। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम प्लूरल्स यूज करेंगे, अगर हम ग्रुप को मेंशन कर रहे हैं तो हम सिंगुलर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज विनिंग द मैच, एक्टिंग एज वन। तो पूरी टीम को आपने एक सिंगल यूनिट ट्रीट किया है, तो यू हैव यूज्ड अ सिंगुलर हियर विच इज and then you say the team are arguing among themselves. So what happens here is, difference कहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे हम team as a whole की बात कर रहे थे, as one unit की बात कर रहे थे, यहाँ पे we are saying the team are arguing, and because they are arguing, the interpretation is that we are talking or referring to individuals and not the group. तो जब आप ग्रुप को रेफर करेंगे तो आप सिंगुलर यूज करोगे, और जब आप इंडिविजुअल्स को रेफर करोगे तब आप प्लूरल यूज करोगे। नाउ कॉमन IP मैट ट्रैप, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट न्यू रूल। तो कमिटी को हम एज अ वन सिंगल यूनिट ट्रीट कर रहे हैं, तो हमने वहां पे सिंगुलर यूज किया है विच इज हैज। ऑन द अदर हैंड, ये हम कब यूज करेंगे? व्हेन यू से द कमिटी हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द न्यू रूल्स, जब आप इंडिविजुअल मेंबर्स के डिसएग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हो। टू मेक इट सिंपल, जस्ट अंडरस्टैंड, जब हम कलेक्टिव नाउन्स को यूज करेंगे, अगर हम एज अ टीम की बात कर रहे हैं, एज अ वन सिंगल लॉट की बात कर रहे हैं, एज अ सिंगल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हम सिंगुलर यूज करेंगे, और अगर हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो आपको वहां पे प्लूरल यूज करना है। फाइन। प्रो ट्रिप, लुक फॉर कॉन्टेक्स्ट क्लूज लाइक टुगेदर, यूनानिमसली, डिवाइडेड। तो टुगेदर है, यूनानिमसली है, मतलब एज अ ग्रुप है, डिवाइडेड है तो इंडिविजुअल्स है। दैट कैन ऑल्सो गिव यू अ क्लू कि हमें वहां पे सिंगुलर यूज करना है या फिर हमें प्लूरल यूज करना है।
Now, the last rule, advanced usage of gerunds and infinitives. gerund का मतलब होता है verb के साथ जब आप ing यूज करते हो, but it acts as a noun, और infinitive का मतलब होता है जब आप किसी भी verb के साथ में to यूज कर रहे होते हो. So when I say swimming is my favorite pastime, तो स्विमिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, इट इज एक्टिंग एज अ वर्बल नाउन. तो ये जो आईएनजी फॉर्म है उसको हम जेरंड बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड व्हेन आई से टू स्विम इज माई फेवरेट एक्टिविटी, तो टू स्विम बिकम्स योर इन्फिनेटिव, क्योंकि वहां पे हमने वर्ब के साथ में टू को यूज किया है. नाउ सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय ओनली जेरंड्स, दैट इज आईएनजी, एंड सम ओनली बाय इन्फिनेटिव, दैट इज टू प्लस वर्ब. जेरंड में हम वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं, इन्फिनेटिव में हम वर्ब के साथ टू यूज करते हैं, एंड सम कैन टेक बोथ but change the meaning. For example, she enjoys reading novels. यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते she enjoys to read novels, क्योंकि ये normal structure नहीं है जैसे हम language को use करते हैं. He decided to leave early, infinitive use करेंगे. Then I stopped smoking is fine, stopped the activity. I can also say I stopped to smoke. तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जेरंड भी, इन्फिनेटिव भी, एंड इन सर्टेन एग्जाम्पलरी केसेस यू कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ बोथ. तो ये इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा आपको तब समझ में आएगा जब आपकी रीडिंग स्किल्स उतनी बेहतर हो जाएंगी कि आप सेंटेंसेस को पढ़ के फिगर आउट कर सको कि वहां पे आईएनजी फॉर्म यूज होगा या वहां पे टू फॉर्म यूज होगा. अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसा बोलती है गाइस कि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर. तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव क्या है, ऑल्दो मैंने भी एक्सप्लेन भी किया. टू प्लस वर्ब के साथ इन्फिनेटिव बनता है और वर्ब प्लस आईएनजी के साथ में जेरंड को फॉर्म करते हैं. कॉमन आईपी मैट ट्रैप, ही अवॉइडेड टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स. Instead of that, the correct version is he avoided meeting his old friends. तो यहाँ पे आपने infinitive use किया है जो कि generally use नहीं किया जाता. It's an incorrect form of usage. On the other hand, you say he avoided meeting his old friends, which is the correct pointer. तो ये जो rules हैं, this has to be understood in the right frames. It has to be थरली रिसर्च, और आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होते हैं ताकि आप थियोरी को प्रैक्टिस के साथ कंसोलिडेट कर पाओ, एंड देन यू ट्राई टू फिगर आउट कि हमारे आंसर्स कैसे आएंगे. नाउ फाइनल टिप फॉर आईपी मैट, ऑलवेज आइडेंटिफाई द मेन वर्ब बिफोर डिसाइडिंग द टेंस और द फॉर्म. ये आपको ध्यान रखना है कि मेन वर्ब हमेशा इंपॉर्टेंट होता है. वॉच फॉर हिडन सब्जेक्ट्स, इंटरवीनिंग फ्रेजेस एंड कलेक्टिव नाउन्स. दिस इज अगेन समथिंग जो हमने डिस्कस किया है, हम उसको सिर्फ समराइज कर रहे हैं. एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज प्रैक्टिस एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस एज दीज आर हेविली टेस्टेड इन योर आईपी मैट. आईपी मैट के पेपर में आप चाहे किसी भी एग्जाम की बात करो, यू आर टॉकिंग अबाउट आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, जिप मैट एंड अदर बीबीएनटीएस एग्जामिनेशन, ग्रामर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दीज टेस्ट गाइज. और ग्रामर को आप दो तरीके से सॉल्व करते हो. यू शुड बी नोइंग द रूल्स फर्स्ट, एंड देन यू शुड नो हाउ टू इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट दीज रूल्स थ्रू द प्रैक्टिस मॉड्यूल. तो आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने क्वेश्चंस को लेके श्योर हो सकते हो. Right, so that was it for these particular sessions that we are doing. तो हमने वर्ब यूसेज को लेके 7 इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस किया है. ये वीडियो आप पॉज करके देखिए, हर रूल के बाद हमने क्या एग्जाम्पल्स लिए हैं. मोर देन लर्निंग और मेमोराइजिंग द रूल बाय इटसेल्फ, आप अपने एग्जाम्पल्स पे फोकस करिए. अगर एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हैं तो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आप किसी एग्जाम्पल से उसको रिलेट कर पाते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी ऑफ आंसर्स होगी दैट विल बी बेटर. मीनवाइल वी विल कीप क्रिएटिंग सम वीडियोस जो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा in terms of grammar also, in terms of vocabulary also, in terms of RCs also, and in terms of other areas which is verbal reasoning. कभी कभी क्वेश्चन पेपर्स में आ जाता है, तो जैसे पैराजम्बल के क्वेश्चंस हैं, पैराजम्बल्स पे सेशन हुआ था, ठीक है, पैरा कंप्लीशन पे एक सेशन हुआ था. दीज आर पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं. Now, before I come to the conclusion of my video, just understand one thing guys, grammar के questions को tackle करना है तो आपको awareness of rules रखना पड़ेगा. Similarly, you will also have to practice a lot of questions, क्योंकि सिर्फ conceptual understanding से कुछ नहीं होता. अगर आप प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं उसको
किसी भी सेंटेंस में या एग्जाम्पल में किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है. So make sure you are working on your theory, you are working on your concepts, and along with your concepts, you are also practicing questions. We will also come up with questions of all these concepts that we have discussed, but वो थोड़े से later part के लिए है. Meanwhile, just work on your conceptual clarity, and I think you are good to go. That's all from my side, guys. Keep working harder, keep working smarter. I'm sure you would be very confident by the time you appear for your for your IP MAT preparation exam there. Thank you so much. Have a good day.